Hello students, you are with Bindu Chaudhary and today we are covering our past part 3rd, chapter 2nd. From trade to territory, the company establishes power. See, this one is the last part and the last part is of question answer session. But before we are pursuing for question answer session, let's recall about the chapter. We had already discussed about many battles, many leads by कंपनीज एज वेल एज आवर इंडियंस. बट हम आसानी से जान सकते हैं बच्चों कि कैसे इंडिया के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी केम हियर ओनली फॉर ट्रेड, बट लेटर ऑन दे कैप्चर्ड आवर टेरिटरीज. ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, दे कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया ओनली एंड ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड वी इंडियन लॉस्ट मैनी बैटल्स. सेरिंगापट्टम का वॉर भी हम हार चुके थे एंड सी बैटल ऑफ प्लासी, सी द अदर बैटल्स आल्सो. सो लेटर ऑन सब्साइडरी अलायंस भी लग गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लग गया. तो इसके द्वारा हमने क्या देखा, वी इंडियन लॉस्ट मैनी टेरिटरीज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी was so much powerful on that time. So hope you recall everything. So we will start question answer session here. First of all we are covering matchups. These are jumbled and here we are giving it in a proper way. See, दीवानी. What is this दीवानी? दीवानी से क्या मतलब होता है बच्चों? दीवानी means right to collect land revenue. Yes, Diwani means right to collect land revenue. We will write in this way here. Second one is Tiger of Mysore. Who hold this title of Tiger of Mysore? Yes, Tiger of Mysore was Tipu Sultan. नेक्स्ट वन इज़ फौजदारी अदालत. हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ पे उन्होंने फौजदारी अदालत बनाई. What is the other name of फौजदारी अदालत? See here, criminal court. So the other name of फौजदारी अदालत is criminal court. Next one is about रानी चेन्नम्मा. रानी चेन्नम्मा ने लेड किया था कहाँ पे, किसके विरुद्ध? See here, Rani Chennamma led an anti-British movement in Kittur. Now Kittur is called Karnataka. कर्नाटका जिसको पहले हम क्या कहते थे बच्चों, किटूर कहते थे. वहाँ पे रानी चेन्नम्मा ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था. और इनकी डेथ के बाद में क्या हुआ, चौकीदार ने भी इस मूवमेंट को चलाया था, बट ही वॉज ऑल्सो कॉट एंड हैंग्ड. लास्ट वन इज सिपाही. व्हाट इज दिस सिपाही? अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, सो दिस वन इज सिपाही. हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम बच्चों, लेकिन जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, दे कॉल्ड इट सिपाही. आई थिंक क्लियर दीज मैचअप्स टू यू. वी आर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. सी वन बाय वन 4 or 5 fill in the blanks are there. First one is the British conquest of Bengal began with the battle of, from which battle British conquest Bengal? This battle was the battle of Plassey. Next one is Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of. See, Hyder Ali was the father of Tipu Sultan, or we will say Tipu Sultan was the son of Hyder Ali, same thing. So they were the rulers of Mysore. And what is the capital of Mysore, students? The capital of the Mysore was Seringapatam. On that time we are discussing about that time. Okay, see, Dalhousie implemented the doctrine of Dalhousie. Lord Dalhousie ने कौन सी नीति चलाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति चलाई थी. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. नेक्स्ट वन इज Marathas kingdom were located mainly in the part of India. Which part of India? Yes, southwestern part of India. जब हम साउथ वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मराठा किंगडम ने वहाँ पे बहुत काम किया था. एंड दे टुक द हेल्प ऑफ द फ्रेंच आल्सो. डचेस ने भी उनकी हेल्प की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन related with the true false. First one is
The Mughal Empire became stronger in the 18th century. Is this right or wrong? No, this one is false. क्यों false था बच्चों? 18th century तक तो मुगल एम्पायर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहा था, because East India Company came here and they captured many parts of India. Second one is the English East India Company was the only European company that traded with India. Is it right or wrong? This is false. Why this is false students? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे नहीं आई थी, इसके अलावा और कौन आया था यहाँ पे? Portuguese and Dutchies also came here for the purpose of trade. Next one is Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. Yes, he was the ruler of Punjab. So this statement is true. Next one, the Britishers did not introduce administrative changes in the territories they conquered. क्या ब्रिटिशर्स ने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस किए थे क्या? They introduced 3 changes. 3 presidencies was there. See, Madras, Bengal and what? Mumbai. Now Mumbai. On that time it was Bombay. So this is false statement. We are coming to the question answer session and this one is the first question. See, what attracted European trading companies to India? ऐसा क्या था इंडिया में? ऐसा क्या था इंडिया में जिससे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो इंडिया आना चाहती थी? लेट्स रीड. European trading companies were attracted to India because of a number of reasons. So not only for a single reason they came here. There were many reasons for this one. The first one is trading with India was highly profitable and fruitful to the businessman in Europe. जो यूरोप के थे वो यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं, so this trade was so much profitable and fruitful for them. How? Let's read. The European trading companies purchased goods at cheaper and sold them in Europe at the higher prices. So they got a lot of profit because this was the cheapest trade for the Europeans. The next one is the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यूरोप में बहुत अच्छा मार्केट था बच्चों. किसका मार्केट था? मार्केट था कॉटन और सिल्क का. एंड आफ्टर ऑल कॉटन और सिल्क के अलावा भी मार्केट्स थे यूरोप के लिए. What were these things? See, Indian spices was also the purpose of trade. They, East India Company uses these things also for the purpose of trade. What were these things? Pepper, cloves, cardamom and cinnamon were in great demand in Europe. यहाँ पे बहुत cheaper rate पे मिल रहा है. These Europeans sold them in Europe in a very high rates and they took profit for the main purpose of the things of trade was the profit, and they took many gaps of profits to them. This is our next question. What were the areas of conflict? conflict था किस किस के बीच में? बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. बंगाल के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बाहर निकल के आ रहा था. सो व्हाट वाज दैट? सी, in the 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. हम क्या देखते हैं? जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, बंगाल नवाब्स wanted to assert their power. दे नो दैट दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो लोग खुद सत्ता चला रहे हैं, वहाँ के किंग्स हैं, वहाँ के नवाब्स हैं, वो खुद सत्ता चला रहे हैं. सेम हियर, औरंगज़ेब की डेथ के बाद में क्या होता है? बंगाल के नवाब से दे आल्सो वांटेड टू टेक पावर एंड देयर सेल्फ ऑटोनॉमी.
Through the 18th century, the conflicts between them and the East India Company intensified. और यही एक मेन रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था. The Nawabs refused to grant the company concessions. क्या क्या हुआ देखिए, नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनीज कंसेशंस, डिमांडेड large tributes, denied it the right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. And this was the main purpose why these East India Company's officials wanted to capture our territories. देखिए क्या किया है नवाब्स ने, नवाब्स बिल्कुल रिफ्यूज़ कर गए. नवाब्स ने क्या कहा कि हम कंपनी को कोई भी तरह का कंसेशन नहीं देंगे. बिफोर दिस वी न्यू वेरी वेल दैट क्या हुआ था उस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर ऑफ फ्री ड्यूटी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो अपना ट्रेड कर सकते हैं. बट लेटर ऑन नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज्ड दिस वन एंड अगेन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल स्टॉप कर दिया कि आप कोई भी अपना आगे फोर्टिफिकेशंस एक्सटेंड करेंगे, वी are not allowing to use this one also. Again the same thing here, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. और बंगाल के नवाब्स को क्या लगता था, जो कंपनी है वो क्या कर रही है, हमारे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू को यूज़ कर रही है, एंड ऑल्सो अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी बाय रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस. East India Company refused to pay taxes because before this they were not paying any tax, writing disrespectful letters and humiliating them and their officials. और क्या हो रहा था, disrespectful letters लिखे जाने लगे, इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं उनके संग भी मिसबिहेव होने लगा. ऑन द अदर हैंड, और जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी डिक्लेयर दैट इट्स ट्रेड्स वाज गेटिंग रूइंड. कंपनी कहती है हमारा तो व्यापार ही बिल्कुल ख़त्म हो गया. वाई? बिकॉज ऑफ द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स. लोकल ऑफिशियल्स जो नवाब की तरफ से थे वो बहुत ज़्यादा अनजस्ट डिमांड्स करने लग गए थे. इट बिलीव्ड दैट ट्रेड कुड ओनली फ्लरिश इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड. ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लालच आ गया था फ्री टैक्स का, ड्यूटी फ्री टैक्स था उनके लिए, बट लेटर ऑन नवाब्स ने क्या किया, उनके टैक्स लगा दिया. सो ईस्ट इंडिया कंपनी thought that these duties were removed by all these things to expand trade. It wanted to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. और इसीलिए वो क्या चाहते थे कि हमें वापस एक अच्छा सेटलमेंट दिया जाना चाहिए, हम गांव खरीदना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, हम अपने खुद के फोर्ट्स भी बनाना चाहते हैं. सो these were the conflicts between East India Company and the Nawabs of Bengal. See our next question here, how did the assumption of Diwani benefit the East India Company? दीवानी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, what they got from this one? See this one, the Diwani right to East India Company benefited in several ways. बहुत तरह से दीवानी की तरफ से उन्हें हेल्प मिली. How? See this one, the Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. First one, the important thing that from the resources of Bengal, from the purpose of Diwani allowed to East India Company that they will use all the resources of Bengal as a revenue. The next one is the East India Company monopolized trade and began direct plunder of Indians' wealth. हम क्या देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी तो वो एक तरह से मोनोपोली चला रही थी और ट्रेड में सिर्फ वो एकाधिकार, मोनोपोलाइज्ड मीन्स एकाधिकार वाली जो स्थिति होती है वह लेके आ रही थी. एंड उससे क्या हुआ, दे बिगिन डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडियाज वेल्थ. इंडिया की वेल्थ को डायरेक्ट वो लेके जा रही थी. रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस, और जो भी रेवेन्यू आ रहा था उससे क्या हो रहा था, उनके जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको फाइनेंस मिल रहा था. दीज रेवेन्यूज वर यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन
company troops and meet the cost of the buildings, the company's fort and offices at Calcutta. हम क्या देखते हैं, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था दीवानी के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड दैट फॉर द परचेज ऑफ cotton and silk, for the uses of company troops to meet the cost of the buildings maintained by East India Company, to the company forts and the offices of the East India Company had at Calcutta. Next one is the company used its political power to monopolize trade and dictate terms. और सबसे बड़ी बात क्या है, वो जितना भी पॉलिटिकल पावर थी उसको यूज लेना चाहती थी और उसी के द्वारा वो मोनोपोली बना रही थी कि जो भी है वो हमारा ही है. See here, they could impose their own prices that had no relation to the cost of the production. आप खेती कर रहे हैं, उस खेती में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को. ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज देयर ओन प्राइजेस, सो इट ऑल रूइंस द फैसिलिटीज टू द इंडियन वर्कर्स. इंडियन जो पीजेंट्स थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था इन सब चीज़ों से. द कंपनी यूज्ड रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स. जितना भी इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था उसके लिए जितना भी अमाउंट आ रहा था वो सब किससे आ रहा था, रेवेन्यू ऑफ बंगाल से ही कंपनी होल्ड कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सी, we had already mentioned it in a short note. Now this one is the long question here. After the battle of Plassey in 1757, the battle of Buxar held in 1764 and gaining the दीवानी ऑफ बंगाल. क्या क्या हो रहा था देखिए, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद में हम क्या देखते हैं, बंगाल में जो दीवानी हक है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे. द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स रूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दिस वाज द बेनिफिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी दैट दे एक्सपेंड देयर रूल्स इन other parts of the India. For that it had devised several plans. One among them was the सब्सिडरी अलायंस. हम क्या देखते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाए थे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान क्या बनाया था बच्चों, सब्सिडरी अलायंस का प्लान बनाया था. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस क्या था, इसका कंडीशंस क्या क्या थी, लेट्स रीड. Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. Indian rulers को बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था कि वो खुद अपनी armed forces रख सके. So how they secured on that time themselves? See here, they were to be protected. Yes, they were to be protected by the company, but pay for the subsidiary forces. अब यहाँ पे अलग ही बात हुई, उनकी प्रोटेक्शन तो की जाएगी बट फ्रॉम द साइड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पज दे पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ देयर प्रोटेक्शन. जितना भी खर्चा कंपनी उनकी सुरक्षा के लिए कर रही है उस सब खर्चे की भरपाई कहाँ से होगी, जो नवाब्स हैं, किंग्स हैं, उन्हें सब्सिडरी अलायंस के रूप में उसे देना होगा. अगर वो नहीं देते हैं बच्चों तब क्या होगा, इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट देन दैट पार्ट ऑफ टेरिटरी वॉज टेकन अवे बाय द कंपनी एज पेनल्टी. अगर कोई नहीं देता है तो उसका जितना भी हिस्सा है उस पैसे को वसूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, पेनल्टी के रूप में उसे वसूल करती है. वी आर गिवन एन एग्जाम्पल टू यू. इन 1801 द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड to give over half of his territory to the company for failing to pay the subsidiary forces. और हम देखते हैं 1801 में क्या हुआ था, अवध में सेम कंडीशन हुई थी. अवध के जो नवाब हैं वो सब्सिडरी अलायंसेस के रूप में अपना अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाए थे एंड उनको क्या करना पड़ा, हाफ ऑफ द अवध वॉज टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ये एक सबसे बड़ा जो धीरे धीरे टेरिटरीज को कैप्चर करने का तरीका था, उसमें सब्सिडरी अलायंस ने भी मेन पार्ट अदा किया. आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज हेयर,
In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? Indian rulers के राज करने का तरीका क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था? We will see here. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था जिनको क्या कहा गया, प्रेसिडेंसीज. एंड दिस वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनीज. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई उस टाइम. फर्स्ट वन इज बंगाल, सेकंड वन इज मद्रास एंड द थर्ड वन इज बॉम्बे. वेयर एज अंडर द इंडियन रूलर्स, ये तो प्रेसिडेंसीज की हमने बात की ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूलर्स के अंतर्गत. और हमारे यहाँ के जो इंडियन रूलर्स थे वो क्या करते थे, देखिए बच्चों, इंडियन रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रिक्ट और जिला, द सेकेंड वन इज परगना, द थर्ड वन इज तहसील एंड द फोर्थ वन वॉज विलेज. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इंडियन रूलर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो टाइम था वो 4 तरह से डिवाइड किया था. ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रेसिडेंसीज, देन we learned that these administratives was ruled by a governor. And what about this one? The supreme head of the administration was the governor general. Whereas under the Indian administrative system, the supreme head was king or nawab. जहाँ पे हम प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल्स नियुक्त किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रूलर्स, देन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was head with the kings or nawabs. See again, वॉरेन हेस्टिंग का हम बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक सिस्टम और चलाया था बच्चों. वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूसेस द न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट. द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स को कौन ध्यान रखता था, यूरोपियन जो कलेक्टर्स नियुक्त किए गए थे, दे होल्ड द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स. देन व्हाट अबाउट क्रिमिनल कोर्ट्स स्टूडेंट्स? The criminal courts were still under a काजी एंड a मुफ्ती. काजी और मुफ्ती के अंडर में ही क्रिमिनल कोर्ट्स अभी तक चल रहे थे. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया गया. व्हाट वाज दैट? अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड. एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई 1773 एक्ट के अंतर्गत. द मेन फिगर इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर. और हम क्या देखते हैं, अगर इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मेन काम कौन करते थे, कलेक्टर्स करते थे. क्या काम करते थे बच्चों? अकॉर्डिंग टू हिज टाइटल कलेक्टर, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड द टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ. 3 मेन काम थे इनके, और भी काफ़ी काम करते थे. रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना एंड मेंटेन लॉ. with the help of whom? and order in his district. orders भी कभी मेंटेन करना था. with the help of judges, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास. इन सब की हेल्प से जो कलेक्टर है वो काम कर रहे थे. होप लास्ट क्वेश्चन तक हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे. होप ऑलरेडी यू नोटिस्ड एवरीथिंग विद अस. डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी. कंपनी की आर्मी में क्या क्या चेंजेस किए गए? क्या वो इंडियन आर्मी से लेकर किए गए, डिफरेंट फ्रॉम इंडियन आर्मी? व्हाट वाज दिस? सी हियर. During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, it started recruiting peasants and began training them. उनको क्या करना शुरू कर दिया? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? रिक्रूटमेंट शुरू किया. रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया उन्होंने? जो पीजेंट्स है उनको लिया एंड आफ्टर टेकिंग दैम दे बिगेन टू ट्रेंड देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स. पीजेंट्स को लेके प्रोफेशनल सोल्जर्स के हिसाब से उन्हें ट्रेंड किया गया. लाइक द मुगल आर्मी, जैसा कि हम देखते हैं मुगल आर्मी में उस टाइम हुआ था.
द कंपनीज आर्मी वॉज ऑल्सो कंपोज ऑफ द कैवलरी एंड द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स। इसी तरह से मुगल आर्मीज़ की तरह ही कंपनीज आर्मीज़ ने क्या किया, कैवलरी और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बनाई विद द कैवलरी डोमिनेटिंग द आर्मी। और हम क्या देखते हैं, डोमिनेटिंग आर्मी कौन थी, कैवलरी। However, as warfare technology changed during the 19th century, हम देखते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज युद्ध की चेंज होती जा रही थी, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनीज ने भी 19th सेंचुरी के आसपास चेंजेस करना शुरू किया। द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। कैवलरी रिक्वायरमेंट को तो डिक्लाइड कर दिया गया। क्या किया गया, सी एज द सोल्जर्स हैड टू बी आर्म्ड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स। सोल्जर्स को लेस कर दिया गया मस्कट से और मैचलॉक से। द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट ऑन दैट टाइम। होप स्टूडेंट्स आप हमारे संग संग इनको रीड आउट कर रहे हैं। सो योर ड्यूटी स्टार्ट्स, यू विल डू वन बाय वन दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपीज एंड take in a practice of learning. We will again meet in the next part with next chapter. Stay with us, stay tuned.